دوستو آج کی کہانی مجھے شاداب گل نے انسٹاگرام پر شیئر کی ہے۔ یہ کہانی ان کی بچھڑی ہوئی محبت کی کہانی ہے۔ تو آج کی کہانی شاداب گل اور ریان کے نام۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایم اے کا رزلٹ آتے ہی جاب ہو گئی۔ اسلام آباد سے کچھ آگے ایک خوبصورت وادی کے نزدیک میری تعیناتی ہو گئی۔ پنڈی سے روانگی کے وقت محکمہ والوں کو مطلع کر دیا تھا۔ وہاں پہنچی تو اڈے پر محکمے کے چند لوگ مجھ کو خوش آمدید کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا سامان اٹھوایا اور رہائش گاہ لے آئے۔ میری رہائش کا بندوبست محکمے کی طرف سے تھا۔ یہ قیام گاہ دفتر سے زیادہ دور نہ تھے۔ چھوٹی سی کالونی میں ایک ہی وضع کے چند رہائشی یونٹ بنے ہوئے تھے جو محکمے کے ملازمین کے لیے تھے۔ ایک ملازمہ کا بھی انتظام ہو گیا جس کی مدد سے سامان رکھنے میں آسانی ہوئی۔ اس نے سوٹ کیس سے میرے ملبوسات نکال کر الماری میں لگائے اور کچن کی صفائی وغیرہ کرتے۔ میں نے سامان کی لسٹ چوکیدار کو دے دی۔ وہ کچن کا ضروری سامان لے آیا۔ یہ سب کام کروا کر میں اطمینان سے سو گئی۔ گھر فرنشڈ تھا، اس کی ترتیب و تبدیل میں کچھ زیادہ تردید نہ کرنا پڑی۔ صرف پردے موجود نہ تھے جو شام ہی کو چوکیدار لے آیا اور لگا دیا۔ دوسرے روز 8 بجے آفس کی گاڑی لینے آ گئی۔ دفتر بھی نیا بنا ہوا اور شاندار تھا۔ مجھے جو کمرہ دیا گیا اس میں میری نشست کے علاوہ ایک اور میز کرسی بھی تھے، گویا میرے ساتھ کوئی دوسرا کمرہ شریک بھی تھا، مگر اس وقت موجود نہ تھا۔ اس کی کرسی خالی تھی۔ کمرے میں 2 الماریاں تھیں، ایک میری جانب اور دوسری میرے کولیگ کی میز کی کرسی کی طرف دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ کیبن نما تھا اور سامنے کی رخ پر دیوار کی جگہ بڑی سی گلاس ونڈو تھی جسے باہر حال میں دیکھا جا سکتا تھا۔ گویا میری سیٹ ان لوگوں سے زیادہ اہم تھی جو حال کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ میں آفیسر ریان صاحب کی معاون کے طور پر تعینات ہوئی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ الماریوں میں کچھ فائلیں موجود تھیں اور بوسیدہ کاغذات کے بنڈل بھی اوپر تلے دھرے ہوئے تھے۔ دوسری الماری کے سب سے نچلے خانے میں اسٹیشنری کا سامان اور ایک بیگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے از راہ تجسس کھول کر دیکھا۔ اس میں مردانہ کپڑوں کا ایک جوڑا، شیونگ باکس، 2 کتابیں اور ایک لفافے میں 2 تصویریں تھیں۔ یہ کسی 20-25 سالہ نوجوان کے فوٹوز تھے۔ صورت دل کو موہ لینے والی تھی۔ سوچنے لگی یہ سامان الماری میں کس کا ہو سکتا ہے۔ اتنے میں پیون چائے لے آیا۔ میں نے پوچھا، لالا جی یہ سامان کس کا ہے جو الماری میں رکھا ہے؟ ریان صاحب کا ہے۔ پہلے ساتھ لے جا رہے تھے، پھر کچھ سوچ کر الماری میں رکھ دیا۔ ریان صاحب؟ جی ہاں، وہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا آج چھٹی پر ہے؟ جی، 2 دن کی چھٹی گئے ہیں۔ جب آپ کے آنے کی اطلاع ملی وہ یہاں ہی تھے، اسی شام گھر چلے گئے۔ لالا کی بات سن کر سوچنے لگی، میری آمد کی اطلاع ملتے ہی چھٹی چلا گیا۔ عجیب بات ہے، خدا کرے کوئی اچھا آدمی ہو۔ ہاف ٹائم میں بڑے صاحب نے بلایا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ریان صاحب آپ کو کام سمجھا دیں گے۔ دراصل وہ ایمرجنسی چھٹی پر چلے گئے۔ وہ اچھے آدمی ہیں، پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ کے نشست حال میں لگوا دیں گے۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سر۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ حال کمرے میں اتنے لوگوں کے درمیان بیٹھنے سے تو ادھر ہی بیٹھنا بھلا تھا۔ کمرے میں سکون تھا۔ 2 دن بعد ریان صاحب تشریف لائے۔ آتے ہی سلام کیا اور اپنی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ سلام کے سوا کوئی بات ہی نہ کی۔ مجھ کو یہ شخص مغرور سا لگا۔ اندازہ ہو گیا کہ اپنے کام سے کام رکھنے اور
लिए दिए रहने वाला है। पहला दिन तो बहुत बोरियत में गुजर गया। उन्होंने चंद फाइलें दे दी कि इनकी फहरिस्त बनाकर नंबर लगाइए और अलमारी में तरतीब से रखती जाइए। 2-4 दिनों बाद अंदाज़ा हुआ कि ये नेक तबीयत आदमी है, बड़ी धीरज से बात करता और जो काम मेरी समझ में ना आता तवज्जो और तरीके से समझा देता। वो जिस तरह कहता उसी तरह सर झुका कर अपना काम करती रहती, यहाँ तक कि छुट्टी का वक्त हो जाता। उन दिनों रेहान साहब मुझसे दफ्तर का रिकॉर्ड दुरुस्त करवा रहे थे। जब फाइल ओके हो जाती तो नंबर डालकर उसको अलमारी में रखवा देते। मैं बाहर का खाना नहीं खाती थी। मुलाजिमा घर से पका कर भिजवाती तो मैं इसरार करके रेहान साहब को शरीक करना चाहती। कभी वो चंद लुक़्मे मेरी खुशी की खातिर ले लेते, वरना मुआज़रत कर लेते। ताहम इस तरह हमारे दरमियान से अजनबियत की दीवार हट गई और अपनायत का थोड़ा सा एहसास पैदा हो गया। वो फितरतन कम गो था, सादा सा मगर हसास दिल का मालिक, दूसरों का ख्याल रखने वाला। मुश्किल की घड़ी में सभी का अपना मगर सभी से अलग थलग पे। रेहान बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर चेहरे पर एक ऐसी मर्दाना वजाहत थी जो दूसरों के दिलों को मोह लेती थी। जब वो ठहर ठहर कर समझाने वाले लहजे में बात करता तो बहुत अच्छा लगता था। वो एक अच्छे ऑफिसर की तरह मुझसे पेश आता, कुछ रोब भी रहता और कुछ सहूलत व अपनायत भी, मगर उसके रवैये से महसूस ना होता कि वो ऑफिसर है। मैं अपना कोई मसला बताती, वो झट हल निकाल देता। मेरी हुस्ने कारकर्दगी के लिए पूरी मदद करता और जो काम मुझे मुश्किल लगता खुद कर लेता था, जिससे पता चलता था कि वो एक सच्चा मददगार और इंतहाई मुखलिस इंसान है। रफ्ता रफ्ता वो मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती थी। उसने कहा कि औरत के लिए अबाया अच्छा है। मैं अबाया और स्कार्फ लेने लगी। हालांकि पहले मैं पर्दा ना करती थी, शौक और फैशन वाले लिबास पहनती थी, मगर फिर रेहान की सादगी को देखकर मैं भी सादा लिबास पहनने लगी। उसने मुझे तिलावत की तलकीन की और नमाज की हिदायत की तो मैंने यही वतीरा अपना लिया। सुबह सवेरे तिलावत करती और नमाज भी बाकायदगी से पढ़ने लगी। उसका कहा मेरे लिए जैसे हुक्म का दर्जा रखता हो। मैं उसकी हर अच्छी बात का असर लेती और अमल करती। अब मेरे दिल से अपने मंगेतर का ख्याल जाता रहा। ऑफिस टाइम के बाद वो चाय के लिए साथ चलने की फरमाइश करता तो मैं उसके साथ चल पड़ती। फिर हम इकट्ठे वादी की सैर को जाने लगे, कभी चश्मे किनारे, कभी दामिने कोह में। उसका साथ क्या मिला, गोया मुझको दुनिया का खजाना मिल गया। ये हमारा मामूल हो गया। शाम की चाय साथ पीने हम दामिने कोह की तरफ निकल जाते। इकट्ठे चाय पीने का जो लुत्फ था, उसके बदले दुनिया की हर खुशी मेरे लिए कम थी। गर्मियों की दोपहरों और सावन की ठंडी रुतों में खुनक हवाओं के झक्कड़ और मोतियों ऐसी गिरती बूंदाबांदी, गोया ये कुदरत के वो खजाने थे कि जिनसे हम इकट्ठे अपने दिलों के दामन भरते थे और ख़ुद को खुश नसीब जानते थे। वो तारीफ़ करने में बहुत कंजूस था, बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं करता था। ताहम उसके अंदाज़ बताते थे कि वो मुझे काबिल तारीफ़ समझता है, क्योंकि मैं उसके दिली झुकाव को महसूस कर सकती थी। हमें साथ देखकर दफ्तर वाले चहमे गोयां करने लगे और कुछ तो हसद की आग में भी जल उठे। उसके दोस्त भी उसको छेड़ते और तंग करने पर आ गए। दफ्तर में साथ काम करने वालों में एक नफीस नाम का शख्स हमसे बहुत जेलस था और दूसरा नईम था जिसकी आंखों से अयारी टपकती थी। उसने 2-4 बार मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसको बिल्कुल भी लिफ्ट ना दी। इस वजह से वो और ज़्यादा हसद की आग में जल उठा।
इस कोशिश में लगा रहता था कि उसे कोई मौका मिले तो हमको ख्वार करे। क्योंकि हमारे दरमियान कोई गलत ताल्लुक़ ना था, लिहाजा रेयान के साथ शहर को जाने पर मुझे किसी से डर नहीं लगता था और ना ही मैं उन गैर मुतल्लिक लोगों के आगे अपने किसी अमल के लिए जवाबदेह थे। तभी उन बदख्वाहों ने मेरे घर ख़त लिख दिया कि मैं अपने ऑफिसर के साथ घूमती फिरती हूँ और गलत रंग में रंगी जा रही हूँ। उन्होंने ये भी मेरे वालिदैन को लिखा कि हम आपकी इज़्ज़त बचाना चाहते हैं, आपके खैर ख्वाह हैं, लिहाजा बर वक्त होशियार कर रहे हैं ताकि आपको पछताना ना पड़े। उन बदख्वाहों ने गलत इल्ज़ामात लगाकर हम पर खूब कीचड़ उछाला, मगर हमारे दीगर कोलीग उनकी बातों में ना आए। इस किस्म की उनकी हरकतों से हमको काफ़ी परेशानी तो हुई। ये जून के माह का जिक्र है। रेयान को टूर पर जाना था। हमारा ड्राइवर बड़े साहब के साथ जा रहा था और दूसरा ड्राइवर छुट्टी पर था। रेयान ने कहा कि मैं खुद ड्राइव कर लूँगा। मुझसे कहा कि तुम भी चलो, इस सर्वे में तुम्हारा जाना बनता है। हम उस गांव रवाना हो गए जहाँ का सर्वे मतलूब था। वापसी पर भी मैं कार में रेयान के साथ ही बैठे, क्योंकि हमारे 2 कोलीग साहब के साथ जीप में थे। उनकी जीप आगे निकल गई और हम एक पुरफ़ज़ा मकाम पर चश्मे के पास ठहर गए। ठंडी हवा चल रही थी। कार सड़क की साइड पर खड़ी करके मैं और रेयान थोड़ा सा नशेब में उतर गए ताकि किसी अच्छी जगह चाय पी लें। 1-2 बार ऐसी नाहमवार जगह आ गई कि उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़कर वो जगह पार कराई। सामने छोटा सा हरा भरा कता था जहाँ पत्थर बिखरे थे। हम दोनों वहाँ बैठ गए। मैंने कपों में चाय डाली, रेयान ने पानी की बोतल मांगी। बैग से बोतल निकाल रही थी कि एक जानिब से आहट सुनाई थी। मुड़कर देखा, 2 आदमी हमारी तरफ आ रहे थे। उनके हाथों में डंडे देखकर खौफजदा हो गए। वो आगे ही आगे बढ़ते आ रहे थे। एक ने मुझसे ढिठाई के साथ बेहुदा सा मुतालबा किया। रेयान ने सख्ती से उसको रोका और मेरी जानिब कोई गलत कदम बढ़ाने से मना किया, मगर वो तो जैसे मेरी बर्बादी का ही ठान कर आए थे। उन लोगों पर कोई असर ना हुआ। एक ने रेयान को अपने बाजुओं के जोर पर जकड़ना चाहा, जबकि दूसरे ने आगे बढ़कर मेरी कलाइयाँ पकड़ ली। मैं खौफ से पीली पड़ गई और रेयान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने पूरी कुव्वत से उस शख्स को धक्का दिया और उसके हाथ से डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। तब उस आदमी ने खंजर निकाल लिया। रेयान को अपनी जेब से पिस्तौल निकालना पड़ा। रेयान जब टूर पर होता वो अपने साथ लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल रखता था, क्योंकि सर्वे के दौरान कभी कभार हमारी गाड़ियों को सुनसान रस्तों से भी गुजरना पड़ता था। उस आदमी ने देखा कि मद्दे मुकाबिल के पास अपने दिफा के लिए हथियार है। उसने साथी को आवाज दी, पीछे मुड़कर देखो। उसने मेरी कलाइयाँ मजबूती से पकड़ी हुई थी और मैं खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगा रही थी। तभी पिस्तौल देखकर उसने मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं पत्थरों भरी जमीन पर गिर गई। ये देखकर रेयान ने हवा में फायर किया। उन लोगों को यकीन हो गया कि पिस्तौल भरा हुआ है। तभी वो मुकाबला करने के बजाय भाग खड़े हुए। सत शुक्र उन्होंने गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तौबा की कि आइंदा सड़क से जंगल की तरफ ना जाएंगे, खास तौर पर जब गार्ड साथ ना हो। वो डाकू ना लगते थे। कई दिनों तक सोचा कि आखिर कौन थे, अचानक कहाँ से आ गए। ये इत्तेफाक था या कि वो हमारा पीछा कर रहे थे। एक रोज़ हमारे एक कॉलीग ने चुपके से रेयान के कान में ये बात डाल दी कि उसने नईम और नफीस को फ़ोन पर किसी से ये कहते सुना कि फ़लाँ दिन गुल और रेयान का पीछा करना है। हम अभी वाक़यात की कड़ियाँ मिला रहे थे कि उन बेवकूफ़ों ने मेरे घर ख़त लिख दिया कि तुम्हारी लड़की अकेली अपने ऑफिसर के साथ सर्वे के बहाने दूर उफ्तादा जगह जाती है और ये जंगलों में पिकनिक मनाते हैं। अपनी इज़्ज़त की खबर लो।
ये ख़त मिलते ही भाई को लेकर वालिदा आ गई। मुझे ख़त दिखाया और कहा कि बस अब ये नौकरी नहीं करनी, घर चलो, हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। जब तुम्हारे दफ्तर का कोई आदमी ऐसा ख़त लिख रहा है तो ज़रूर कुछ मसला बन सकता है। खुदा वो वक्त ना लाए जो हमारी इज्जत पर हर्फ आए। बेहतर है कि वक्त पर इज्जत से अपने घर की हो जाओ। तुम्हारी खाला शादी की तारीख भी मांग रही हैं। मैं हरगिज़ मुलाजमत छोड़ कर न जाना चाहती थी, मगर बड़े भाई साथ थे, लिहाजा इनकार न कर सकती थी। बड़े साहब से भाई ने कहा कि हम शादाब गुल की शादी करना चाहते हैं, लिहाजा 1 माह की रुख्सत चाहिए। रुख्सत मिल गई। अम्मी और भाई मुझको घर ले आए। घर आकर चैन न था। रेहान की याद आती, बहुत दुख था। उसे सही तरह से बात भी ना कर सकती थी। इस वाक़ये के बाद से पल पल डरने लगी थी। हर वक्त आंखों के सामने उस रोज़ के खौफनाक वाक़ये का नक्शा घूमता रहता था। सोचती थी अगर उस रोज़ रेहान ने बहादुरी से काम ना लिया होता तो ना जाने क्या हो जाता। उसके बाद से तो उसकी कदर व मंजिलत और भी मेरी नज़रों में ज़्यादा हो गई थी। काश अगर वो मुझसे एक बार भी लफ्ज़ों में इजहार मोहब्बत कर देता तो मैं अपनी मंगनी का बंधन तोड़ देती और मुलाजमत भी ना छोड़नी पड़ती। कभी सोचती थी कि जिसने जान पर खेल कर मेरी हिफाजत की और मैंने उसे वफा न की। मेरी अपने मंगेतर से शादी हो गई। शादी के बाद मुझे मुलाजमत छोड़नी ही थी। इस्तीफ़ा देना पड़ा। आखिरी बार रेहान से कोई बात की और ना खुदा हाफिज कर सके। उसको शादी में भी कैसे भुलाते कि जो मेरे दिल का हाल था उसके दिल का भी वही हाल था। वाकया तो हमारे महकमे के उन्हीं लुफंगे लोगों का था जिसकी वजह से मेरा दिल खौफज़दा हुआ और मैं तड़पती से सकती रेहान को छोड़कर घर वालों के साथ जाने पर राज़ी हो गई थी। मैंने अम्मी को बताया था कि रेहान ने जान पर खेल कर मेरी इज्जत को बचाया। तब वो उसे मिलने गई। अम्मी कमरे में उसे बातें कर रही थी। मैं समझ रही थी कि उसका शुक्रिया अदा कर रही हैं। उन्होंने शुक्रिया तो अदा किया, मगर ये भी कहा कि मेरी बेटी की मंगनी उसकी अपनी पसंद से हुई है। तुम धोखे में मत रहना, ये किसी और की अमानत है। हमने शादी की तारीख रख दी, इसलिए मेरी बेटी ने इस्तीफ़ा दिया है। मैं समझी कि मेरी माँ रेहान की एहसानमंद है, इसलिए अच्छे मूड में उसके साथ बातें की हैं। क्या जानती थी कि वो तो मेरी आरज़ुओं के चमन को जड़ों से काट रही है। शादी से पहले मैं थोड़ी देर को ऑफिस गई थी सबसे मिलने। रेहान से भी मिली। उसने कहा मैं एक ख्वाब देख रहा था। तुमने तो अपनी मंगनी का ना बताया। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने बता दिया और वक्त पर मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं ना जाने कितने बरस धोखे में रहता। जिस रोज हमने जाना था वो एक दिन पहले ही चला गया। बाद में हमको पता चला कि वो तो इस्तीफा दे गया है। वो क्या गया, मेरे दिल की सारी खुशियां ले गया। उसके आखिरी अल्फाज मेरे दिमाग में गूंजते तो रातों की नींद उड़ जाती और मैं माँ से लिपट कर खूब रोती थी। आखिरी रोज उसकी उदास सूरत तो जैसे मेरी निगाहों में बस गई थी, आंखों और जहन से हटते ही ना थे। इस वाक़ये के बाद मेरी शादी हो गई। घरेलू जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया तो ना रोने की फुर्सत रही और ना हंसने की। जिंदगी तो बसर कर ही ले। एक बात का आज भी अफसोस है, काश मैं उसको अपनी मंगनी का बता देती, या फिर वो ही मुझे बता देता कि मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं मंगनी ख़त्म करा लेती और यूं कफ अफसोस ना मिलती।
दोस्तों ये थी रेयान और शादाब गुल की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप भी अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपकी कहानी मुख्तलिफ हुई तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का